who would like to share? कुछ भी शेयर करो, कुछ तो बोलो, क्या हो रहा है लाइफ में? So Good this is morning. Good morning, Suma. Suma here. Yeah. There has been a tremendous change in my life, which I've been noticing as compared to the last two sessions, because I'm completely involved in all the practices which I'm doing. And so many times, apart from the assignments, I tend to continue to be present in the moment and be mindful about my thoughts. Even though, yeah, there are sometimes I've been distracted, but I come back to the practice of gratitude, and I have seen a lot of change in me. I'm always an irritated person. I get anger very easily, but these practices have mellowed me down. I've become more compassionate. I've become more loving. Um, that is a tremendous change which I have seen in my life. And what is the impact and reaction of the people around you? I haven't seen, I mean, they have also been trying to be kind and nice to me. The way I speak to them, they have also been being nice to me when they talk. So, and also they, even when somebody is talking anything negative, when I tell them let us not talk about it, they also understand and they react in a good way. Yeah. So do you think, do you know why is it happening like that, that they are behaving in that way? Because I am responding in that way, because I've been grateful. Yes. Is that the reason? Yes, because it's a circle, now, which we are starting every time. So what does Right. law of attraction says? Like Like attracts like. attracts. Right. So when you are sending gratitude in the universe, more such situations will start coming into your life to be grateful for. And when you are being grateful and you're, the aura around you. So when you are always staying positive, see, we all have certain auras, whether we believe it or not. It's a science. We all have a body. Our body has an aura. So many a times it happens, somebody, you don't even know, enters a room and you get annoyed कि ये कौन है, क्यों आया ये, अजीब सा बंदा नहीं है, मतलब कुछ नहीं कहा उसने आपसे, but the aura of that place automatically changes. And sometimes it happens there's somebody, who just passes by. आप कहीं जा रहे हो, आपके पास से कोई निकल के गया, और suddenly you start feeling, as a peace descended on you. You start feeling slightly happier, and you don't even know the reason. Have you experienced that? Yeah. Yeah. So that is the aura of a person. So a person who's always staying positive has a certain aura, and anybody coming in contact with that aura will automatically get impacted. उसको अच्छा लगेगा या उसको बुरा लगेगा, उसके aura पे depend करता है. If you think about all these your godly people जो बहुत पाठ पूजा करते हैं, and people follow them a lot, तो वो उनके पास जाके कितने शांत हो जाते हैं, एंड दे एंजॉय देयर कंपनी, बिकॉज वहां पे कुछ ऐसा होता है. अगर आप सत्संग में भी बैठोगे या आप ऐसे लोगों की संगत में भी बैठोगे, तो यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर, you start feeling calmer. Is it because of you? No, you're the same person. It's because of the aura of that place, because that person has created so much of positivity in that area, that anybody and everybody getting in touch with him or coming into that environment gets to feel that. So when you are sending gratitude, your aura is increasing, your aura is becoming positive. So anybody coming in contact with you will, वो कहते हैं ना, it will rub off on them also. So that is what is happening. So good, congratulations, and keep doing it. And I'm so happy that you've started feeling the changes and started seeing magic around you. And because you always, you felt it like that everybody is getting, some benefits, and
maybe you're not doing it Yeah. right. I also realized that I was not giving my 100% to it. Yeah. I can definitely see the change. This is the third cycle which I'm doing, and I'm fortunate that I have joined this, and I would want to continue the rest of my life doing magic. Yes, yes. If you keep doing that, that is only how you will sustain it. See, one is Right? Yeah. when you said that you're doing this the third session. So first is attaining it. So when you start grasping it, when you start you know understanding it or whatever your knowledge जैसे हम gain करते हैं ना. So one is attaining it. Second is maintaining it, like what you're doing right now. You're maintaining it because you learned it, but you're not practicing it, right? Now you started practicing it, so you're maintaining it. Now to sustain it over time, you'll have to keep practicing it, no? So that is why structure is required. Because the moment the structure is not there, as a human being, we are very lazy people. And this is not our, जो हमारी normal habit है, वो है नहीं अभी. We are just forming habit. अब इस हैबिट को हम जितना बार बार करेंगे उतना ही स्ट्रांगली हमारे न्यूरो पैटर्न्स में वो रजिस्टर हो जाएगी. Otherwise it will be something momentary and then it will just go off. So that is Absolutely. why, yeah, that is why the structure and practice is very important. Yeah, thank you so much, Sima, for sharing. Thank you. And those few days, few gaps which were there before the session, before starting the new sessions, even though like I wanted to do it, it was not that easy. Like as how it is happening when the sessions are when the sessions are going on. So I could really notice that difference. Though I started, I have never stopped since the first day of my practice from the previous two sessions as well. But there is tremendous change when I am doing it by myself and when I attend the sessions. Yeah, it definitely makes a difference. See, when you're doing it in a group, and then you're doing it on by yourself, it makes a lot of difference. Even I'm not able to sustain it. I'm talking about myself. I've been reading this and doing this book for years, but off and on. अगर structure नहीं है, तो छूट जाता. So इसीलिए structure is very important. If we want to really, have the kind of life we want to live, then the only thing is practice. And for practice, there has to be some structure. So some structure you have to create. Either, if I continue this, you can join me. If you want to start your own book, you can start your own book. Or if you have any other ways of, keeping it in structure. So the only thing is keep it in structure and keep practicing it day in, day out, day in, day out. And then you will start saying, okay, you will become so powerful that you say something and it happens. And all these people, ये जो जिन भी हम महापुरुषों के पास जाते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए और वो कहते हैं कुछ तो हम कहते हैं कि हो जाता है. क्यों हो जाता है? Because they are always staying in gratitude. They have created that much of aura around them. They have gone to that level. हमारा तो अभी 0 level पे हैं हम लोग. इसके कितने levels हैं? वो पता नहीं कितने highest level पे हैं कि जहाँ people even think about it and things happen. And it happens. And that is what the magic is. ये कोई है नहीं कि ऐसा नहीं होता है. Even you can do it. If you keep practicing it, go deeper, deeper, deeper into it, and you fill your life, fill yourself with gratitude throughout your day. And night में भी सोने से पहले कर रहे हो, so even at night when you're sleeping, the gratitude is working. So when you saturate yourself with gratitude, even you can do it. That you think something and it happens. You say something and it happens. But right now, we're just learning. We have just taken first step towards it. So good. Keep doing it. And thank you so much for sharing, Suma. Thank you. Thank you. Anybody else wants to share anything from yesterday's session? कैसा महसूस हुआ अपने negative situation को या problem में gratitude का तड़का देने में? Anybody wants to share? It's Meenu this side, ma'am. हाँ जी मीनू बोले. Smile morning.
It was so wonderful now when I was writing down the gratefulness for the negative situation what I have, the most resolving problem of my life. I need to be resolved. Usko gratitude dete dete just 5, 7, 8, 10. It flows down so many grateful things for that situation itself. I was surprised to see कि ये भी इसमें भी इतने gratitude देने की जगह है, इतने negative thing में भी. Yeah. It was wonderful experience. How मतलब my pen was rolling down. Automatically things are coming out of me. How could I pay gratitude to this thing only? It was Yeah. good experience. Very nice. Yeah. Did you write that thank you for the perfect resolution? Yes. Yes, I wrote it. Okay. So because that sentence will bring the resolution to that problem. Because after giving gratitude, when you write that, you're asking the universe, "Yeah, अब मुझे इसका resolution दे दो." Yes. And universe को तो देना ही है. वही प्रॉब्लम ये ना, हम मांगते नहीं है. हम मांगते हैं बड़े अलग तरीके से. हम सिर्फ मांगते दे दो दे दो दे दो दे दो. बट जब हम ग्रेटिट्यूड देने के बाद मांगते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, जैसे वो सब कुछ जानता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. बट जब आप स्पेसिफिकली लिखते हो ना, तो उसको पता चल जाता है एग्जैक्टली चाहिए क्या. क्या चाहिए. Yeah. So that is the, इसका जो उसने लिखा है, and may thank you for the perfect resolution. That is why, because we are asking the universe, this is the issue and I am grateful कि इस issue को आपने मुझे दिया, क्योंकि मैंने इसमें से ये चीजें सीखी हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, या जिसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि ये सिचुएशन आई तो मुझे ये चीजें समझ आई. Isn't it? And Yes. उसके बाद अब इसका resolution भी कर ही दो, like that. Yes. And it will start coming. वो अपने आप आना शुरू हो जाता है resolution. और किसने lifeline use करी कल? That is the most interesting part of it. और कितनी बार करी, कितनी बार पकड़ा अपने आप को कि आप negative बोलने वाले थे. कई बार पकड़ा, कई बार अपने आप को स्टॉप किया, अंदर से ही नहीं, ये नहीं बोलना. हाँ, और फिर lifeline use की थी. हाँ, लाइफलाइन भी यूज की थी. आई एम ग्रेटफुल, rather I must say I am grateful for this. आया था माइंड में, बहुत बार आया दिन भर. अगर ये प्रैक्टिस आप आज कल से जैसे शुरू करिए ना, अगर आप रोज करना शुरू करोगे ना, आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी. बिकॉज जितना कम नेगेटिव बोलोगे उतना पॉजिटिव बोलोगे ना. और जितना पॉजिटिव बोलोगे उतनी ही आपके लाइफ में जितनी पॉजिटिव चीजें वो आती चली जाएंगी. बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट ना. एंड अच्छा, एक चीज और व्हाट आई ऑब्जर्व कि जो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने लेसन्स में कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली रोज अपने आप किसी न लेवल पे हो रहा है. हाँ, वो तो होगा. प्रैक्टिस तो हो ही रही है उस दिन का होमवर्क, बट स्टिल प्रीवियस वन इज हैपनिंग विदाउट थिंकिंग इट्स हैपनिंग. दिस इज द मेजर थिंग आई फेल्ट. या एंड कितनी बार होता है कि जैसे हम लोग प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं. जैसे गोइंग फॉरवर्ड, जैसे हमने अभी एक हफ्ता खत्म किया, एंड एक हफ्ते के बाद अभी दिस इज 4 weeks जर्नी, इफ यू लुक एट इट. सो 1 week खत्म हुआ, उसके बाद हम थोड़े से एडवांस स्टेज में जाते हैं. सो दिस इज लाइक अ स्कूल की क्लासेस नहीं होती है कि पहले हम प्राइमरी क्लासेस में होते हैं, फिर हम मिडिल क्लासेस में आते हैं, फिर हम आते हैं हायर क्लासेस में, उसके बाद फिर कॉलेज चले जाते हैं. सो अभी हमने प्राइमरी क्लासेस खत्म की है, जहाँ हमने ABCD लिखना शुरू किया था, सेंटेंस बनाने शुरू किए थे, है ना. तो अभी हमने फर्स्ट वीक में थोड़ा सा इसको समझना और सीखना शुरू किया है. So, may I request others to be on mute, please? Yeah. तो अभी going forward in the second week हम लोग इसको थोड़ा सा डीपर लेके जाएंगे. एंड उसके बाद थर्ड वीक में और गहरा जाएंगे. फोर्थ वीक में जाते जाते हमको और गहराई से ये ग्रैटिट्यूड समझ आना शुरू होगा कि हम कैसे कर सकते हैं, है ना. तो अभी हमने जितना सीखा है वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं पे वो होता है ना, जैसे हम लैंडमार्क में भी सीखते थे कि देयर आर सर्टेन डिस्टिंक्शंस. व्हेन यू स्टार्ट practicing those distinctions, after certain time you don't have to use the distinctions start using you. Yes. So similarly, when you're practicing these practices of gratitude, when you keep practicing it over a period of time, they start using you. तो आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे यहाँ पे ये वाला प्रैक्टिस करनी है, वो ऑटोमेटिकली होती है.
Yes. जैसे आज का चैप्टर है, today's chapter is very 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 important chapter, and I think it's been 6 months, 5-6 months since the time I started practicing this one, which I do it without fail. मैं कहीं भी बैठी हूँ, ये तो होता ही है मेरे से, क्योंकि अब मुझे सोचना नहीं पड़ता. So it's become my, my DNA type. ये तो ऑटोमेटिकली होना ही है, वो एक हैबिट बन चुकी है, तो हैबिट फॉर्मिंग ही तो कर रहे हैं ना हम. सो सिमिलरली बहुत सारी चीजें, जैसे हम काउंट द ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, तो हम रोज 10 बार लिख रहे हैं ना, 10 चीजें लिख रहे हैं, तो धीरे से ज्यादा हो रही है, अपने आप ही हो रही है, वो सोचना नहीं पड़ रहा उसके लिए. या और इनिशियली कितना वो चैलेंजिंग लग रहा था कि 10 चीजें कहाँ से ढूंढे, है ना. तो वही जब गोइंग फॉरवर्ड व्हेन यू आर राइटिंग दीज एंड दे आर जस्ट फ्लोइंग, बिकॉज आपको दिखने लग गया हम किस किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं. पहले दिखता ही नहीं था, पहले तो ग्लास खाली दिखता था ना, आधा खाली आधा भरा. अगर देखें तो हमें अपना ग्लास आधा खाली ही दिखता था, पर अब हमें आधा भरा हुआ दिखता है, और उस भरे हुए में भी कितना कुछ दिखता है कि उस आधे भरे हुए में भी कितना अमृत है, कितना मिनरल्स हैं, कितना कुछ है उसमें, है ना. सो दिस इज हाउ वी आर लुकिंग एट इट नाउ. सो गोइंग फॉरवर्ड ये सब जो चीजें हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जैसे मैजिक रॉक प्रैक्टिस है, या आपने हेल्थ के बारे में जो भी सीखा, तो जहां भी पेन होनी शुरू होगी आपको इमीडिएटली याद आएगा, अच्छा यहाँ पे ग्रेटिट्यूड नहीं दिया हुआ मैंने, पता नहीं कितनी कंप्लेंट्स की हुई हैं. और जैसे ही बोलने लगोगे ना, दर्द है, अपने आप को चेक करोगे कॉन्सिक्वेंसेस. एक कंप्लेन 10 स्टेप्स नीचे, एक कंप्लेन 10 स्टेप्स नीचे. अरे भैया 10 स्टेप नीचे चली जाऊंगी, मुझे कंप्लेन नहीं करनी है, इंस्टेड मुझे ग्रेटिट्यूड देना है, ताकि मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊं. Isn't it? तो वो अवेयरनेस आ गई है, which is really going to help going forward. And the more important thing, I have told this gratitude technique to my husband and my daughter. My daughter is only 12 years old, and they have understood it. अब तो घर में है कि एक दूसरे को थैंक यू बोले जा रहे हैं पूरा दिन, rather than complaining. Yeah. So imagine the kind of environment you will have at home. Yes. I am so grateful that I have joined this sessions. Thank you so much. Thank you. And it shows you. See, हर एक वही कहते हैं ना, हर चीज का वक्त होता है. जिनका वक्त आया है सिर्फ वही कर सकते हैं. Otherwise, I mean, I shared it earlier also. In 2009, the first time I came across Secret. और मैंने उस टाइम I was so उसको देख के मुझे इतना अच्छा लगा था कि मुझे लगा मैं बांट दूं सारी दुनिया में. और उस टाइम पे ना ये इंटरनेट वगैरह इतना ज्यादा होता नहीं था, तो मैंने, मेरा एक फ्रेंड था, उसके ऑफिस में जाके सीडीज बनवाई डाउनलोड करके मूवी को, हिंदी में और इंग्लिश में. मैंने जिसको मिलती थी मैं उसको समझाती थी, उसको पकड़ा देती थी. एंड कितने लोग आज तक उनके बैग में या उनके स्टडी टेबल पे या उनके ऑफिस के ड्रॉअर में आज भी पड़ी है, पर उन्होंने खोल के नहीं देखी है, बिकॉज उनका वक्त नहीं आया है. I read the Secret book many years back. I don't even remember. That's what I'm saying. हाँ, but I never used it and never practiced it, और वो नहीं हुआ, और वो अब हुआ. और मैजिक बुक भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है. Can you get that? पढ़ी है, बस को प्रैक्टिस नहीं किया है. It has got 28 days practices, पर उन्होंने मैजिक की बुक को करा नहीं है, सिर्फ पढ़ा है. हाँ, मैंने भी पढ़ी है. That's it. Yes. पढ़ने में और प्रैक्टिस करने में you can see the difference now yourself. Yes. And practicing it alone and practicing it in a group also makes a difference. That also you can see yourself. Wonderful. Yeah. Wonderful. So that is the reason. और जिस का वक्त आता है वही इस चीज के अंदर आ सकते हैं. क्यों? Because you are the chosen one. God has chosen you to spread this. अब जैसे आप अपनी फैमिलीज में, फ्रेंड सर्कल में, जहां पर भी इसको प्रैक्टिस करेंगे, लोग आपसे पूछें कि आप में इतना चेंज कैसे आया, तो यू स्टार्ट टेलिंग देम कि दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग, राइट? And that is how others will also get to know about it. Some people may join sessions, some people may do it on their own, but it is going to touch people. Yeah, and you are going to be instrumental in that. Are you getting that? Yes. Somewhere you have been chosen by the universe to spread this awareness in the world. Because time aa gaya hai.
कहते ना उस दिन पता नहीं कौन बोल रहा था, somebody was saying कि कलयुग तो है, ये महाकलयुग है इस टाइम पे, जहाँ पे किसी के लिए वक्त ही नहीं है किसी को किसी के लिए. तो this is the time, because now is the time to bring that सतयुग back. और वो सतयुग वापस लाने में कहीं ना कहीं हम लोग इंस्ट्रूमेंटल हैं. And we are the blessed ones. We are the chosen ones. Yeah. Thank you so much. Thank you, Meenu, for sharing it. Anybody else wants to share anything before we start reading today's chapter? और किसी ने lifeline use करी? I'm really interested to know that. Hello, good morning. Good morning, Bijal. Okay, मैंने अभी लाइफलाइन यूज किया. जैसे आप बता रहे थे ऑरा के बारे में अभी, कि जैसे अपना ऑरा कैसे होता है, दूसरे लोग भी अपने पे सामने आने से एकदम शांत हो जाते, राइट? तो यस्टरडे मैंने ये मैजिक हुआ मेरे साथ फर्स्ट टाइम. yesterday I went for a walk and कोई वहाँ पे ऐसे ही वॉक करते करते फ्रेंड्स बन गए. तो उन्होंने यू आर सो पीसफुल माइंड, आपके साथ बात करते बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ पूरा दिन बातें करती रहो. मैं बोली एकदम शांत हो गई पहले. ओके, थैंक यू. एंड मैम पूछा मुझे कि व्हाट्स योर नेम एंड आप क्या करते हो. एंड जनरली आई टॉक. then I said I'm study. कौन सा? The Magic Power, मेरे सीक्रेट बुक. वो तो है, पर वो क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है. मेरे को बहुत कुछ खजाना है जो उसमें से सीखने को मिलता है, जो आज आपने मुझे बोला है कि आपको देख के मुझे पीसफुल मिल रहा है. तो घर पे आके मैंने 20 ग्रेटफुल लिखा है. आई एम ग्रेटफुल फॉर अ प्रेजेंट मोमेंट. आई एम ग्रेटफुल फॉर अ बी अलाइव. I'm grateful for where I'm right now. तो मैंने 20 ऐसे मैंने grateful लिखा every day. मिस 10 तो लिखते थे, पर कल तो मैंने इतना अच्छा लगा, किसी ने ऐसा बोला. I feel so happy. ऑरा के बारे में मुझे पता नहीं था, जब आपने अभी बताया ऑरा, then I clicked. तो थैंक यू मैम. कुछ ना कुछ सीखने को अलग अलग मिल रहा है. Yeah, slowly, you will start seeing, transformation around you. I will not say change, transformation around you. In people, like Suma was saying, uske ghar mein bhi sab usse bahut अच्छे से बात करने लगे. So you will start seeing transformation around your environment also. Okay. So this is the power of this magic, which is called gratitude. Okay. So who would like to? हाँ, बोलो. One more thing I want to ask you. जब आपने मनी का चैप्टर बोला था, जब मनी के बारे में हम लोग ने स्लोगन देखा है, तो आई वांट टू आस्क यू कि जब मनी की कोई भी 100 रुपीज की नोट हो या 50 रुपीज की नोट हो, तो उसके ऊपर लिखो, या क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जब किया था तभी मैंने एक पेपर पे लिखा था और आई पुट इट इन अ वॉलेट. तो नाउ आई हैव टू चेंज समथिंग. तो फिर मैं कैसे करूँ, क्या कर सकती हूँ? हाँ, so somebody had shared it on the, I think Mohita or somebody had shared it on the WhatsApp group also. एक नोट के ऊपर छोटा सा जैसे वो स्टिकी वो नहीं होते, नोट्स होते हैं जैसे फ्लैग्स टाइप के होते हैं, ऑफिस में काफी यूज होता है, कलरफुल वंस. वैसा कुछ लेके ना उसके ऊपर लिख के और उसको उसके ऊपर चिपका दो. नोट के ऊपर कोई भी नोट ले लो, 10 रुपए का ले लो, 20 रुपए का ले लो, 5 रुपए का ले लो, 100 रुपए का ले लो, 500 रुपए का ले लो. आई थिंक मोहिता और somebody, I don't know who had put it, उसने 2000 के नोट पे लगाया था. तो किसी भी नोट पे लगा के उसको स्टिक कर दो उसके ऊपर. और अगर नहीं स्टिक हो रहा है तो स्टेपल कर लो हल्का सा. उसके ऊपर उसके ऊपर मत लिखो. जस्ट कीप इट विद यू. ओके, सेकंड पॉइंट इज कि अगर हम लोग बोलते हैं कि कहीं बाहर जाते सब्जी लेने के, व्हाटएवर, वी डोंट बार्गेनिंग. बार्गेनिंग मत करो. व्हाटएवर वेट सेट यू कैन गिव, राइट? If you feel that it is he's asking for too much, so just said भैया मुझे लगता है इसका प्राइस इतना होना चाहिए. Okay. Rather than telling him भैया बहुत ज्यादा पैसे लगा रहे हो, because बहुत ज्यादा पैसे लगा रहे हो is a complaint. Okay. But when you say भैया मुझे लगता है इसके पैसे तो इतने होने चाहिए, तो you're just making a statement. Okay. So there's a difference. So you can communicate positively, but not using negative words or complaining to other person. Okay, fine.
because we can come home and we have to tell your mother-in-law, father-in-law कि हाँ कितना हुआ तो हम लोग बताते हैं इन्हें इससे भी कम मिलता है, then I have to say जो हमने सीखा है ऐसा माइनस प्लस क्यों हो रहा है, that I don't point मेरा ये नहीं समझ में आ रहा. No, you can tell them, but you can tell them in a positive way. उनको blame नहीं करना है कि वो पैसा ज्यादा ले रहे हैं आपसे या he is trying to आपको लूट रहे हैं. जैसे हम लोग अक्सर बोलते थे भैया अच्छी लूट मचा रखी है तुमने, इतना थोड़ी है, देखो पीछे वाला इतने का दे रहा है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग. So rather than saying that, just say that भैया अभी तो मैंने दूसरे वाले से पूछा उसने इतना बोला, मेरे हिसाब से तो इतना होना चाहिए. So when you say मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए, yeah, so then you're not complaining, you're just saying something to him. Up to him whether he wants to accept it or not. और आपकी भी मर्जी, आपने उससे खरीदना है या नहीं खरीदना ना. So जब भी किसी को देना, मतलब होता है ऐसा कि लोग ज्यादा पैसे मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं, पर गुस्से से नहीं देना पैसा. जहां पे आपने गुस्से से पैसा दिया वहां पे आपने अपना नुकसान किया. So अगर गुस्सा भी आ रहा है किसी के ऊपर तो आपने गुस्से उस टाइम पे उसको पैसा नहीं देना. So you have to calm yourself down, अपने आप को काम करना है और उसको ग्रैटिट्यूड देते हुए, अगर उसने ज्यादा पैसे भी लिए हैं और आपको देने पड़ रहे हैं तो भी आपने उसको अपने आप को पहले काम करना है, बिल्कुल शांत करना है. Don't stand there, go drink a glass of water or go to another room as if you're going to get the money or something. Just calm yourself down and just start paying gratitude to that person for whatever that person has done. उसने कुछ सर्विस दी है तो उस सर्विस के लिए ग्रैटिट्यूड दे दो. अगर मानो इलेक्ट्रिशियन आया है और उसकी हर बार की जो विजिट होती है वो 100 रुपीज है, बट ही इज आस्किंग फॉर 200 रुपीज, तो आपको गुस्सा आ रहा है यार, 100 रुपया लगता है तो हर बार तो 100 होता है, इस बार 200 क्यों मांग रहा है ये. राइट, नॉर्मल है ना, गुस्सा तो आएगा ही कि रेट तो 100 रुपया है तो ये 200 क्यों मांग रहा है मुझसे. तो आपने गुस्से में उस टाइम ये बोलते हुए, ये सोचते हुए पैसा नहीं देना है. You just go inside, take a deep breath, calm yourself down and just start saying thank you, thank you, thank you. ये मेरे घर आया, इसने मेरी ये चीज को ठीक किया, इसकी वजह से मुझे क्या फायदा होने वाला है. Just start saying thank you for that. और जब उसको पैसे दो तो खूब सारी blessings के साथ दो, इसको ये पैसा बहुत फले. है ना. कितनी बार ऐसे होता है कि हम किसी को पैसा देते हैं ना, अगर उसने ज्यादा मांग लिया तो हम गुस्से में होता है ये ले रख, ऐसे दे देते हैं, है ना, तेरा कहीं और निकल जाएगा. बहुत बार ऐसे होता है, मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है. सब्जी वाले को भी अगर वो ज्यादा पैसे मांग रहा है उसको दे देते हैं, ले ले तेरा और कहीं निकल जाएगा, ऐसे करके बोल देते हैं लोग. तो ऐसा नहीं बोलना है. अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, बिकॉज एक कंप्लेन 10 स्टेप्स आपका मनी का लेवल नीचे जाने वाला है. थैंक यू सो मच. You're welcome. Ma'am, you are looking very beautiful. Thank you so much. Thank you. Anybody else wants to say anything before we start the chapter? Okay, so who would like to read today's chapter? I would like to read. Yeah, Suma. Yeah, give me a moment, Suma. Yes, can you see it? You have a book, I know that. Yeah. So yes, yeah, I can see. Yeah, is visible to everybody? Yes, ma'am. Okay. Yeah, please start. Day 8, the magic ingredient. Okay, अगर आपको दिख रहा हो पिक्चर में, I don't know whether you can see it. Let me just. Okay, अभी दिख रहा है आप लोगों को पिक्चर? What do you see in the picture? Somebody unmute and speak. Suma, can you say what you can see in the picture? It's a coffee mug, which is filled with 3/4, and I can see the lights all around, the small sprinkling things all around the coffee mug. Is it all around or is it falling inside the coffee mug? It is falling inside the coffee as well outside. Okay, so basically this is about the ingredient, that magical ingredient which we can put in our food, whatever we eat. So let's read what it says. A thankful heart
hath a continual feast. W.J. Cameron, 1879 to 1953, journalist and businessman. Okay, so what does it mean? It means जो हमेशा gratitude देता है उसके पास कभी भी खाने की कमी नहीं होती है. So this chapter is going to be about food. Yeah, and तो जिसका heart is full of gratitude उसको कभी भी खाने की कमी नहीं होती है. आपने देखा ये जितने भिक्षु होते हैं या ये जितने भी गॉडली पीपल होते हैं इनको कभी खाने की कमी नहीं होती है. इनके पास लोग इतने बढ़िया बढ़िया पकवान इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लाके इनको देते रहते हैं. होता है कि नहीं होता है? I mean, it's surprising when you see these people, all these monks and all these people. I mean, they have renounced everything, but they still have everything. उनको लोग अपनी बड़ी बड़ी जैगुआर्स में और मर्सिडीज में लेने आते हैं और उसमें लेके जाते हैं. उनके लिए अपने घरों में स्पेशल उनको अपने घर बुलाते हैं. तो the 5-star kind of a rooms they have for them. They have not even asked for it, but because they are full of gratitude, they are getting all these things. So similarly, people who are always paying gratitude will always have. Give me a moment, please. Let me just switch it off. Yeah, so people who are always paying gratitude will never have a lack of food, and they will always be having a feast. Yeah, so even if you go to a gurdwara and well, it's very surprising कि गुरुद्वारे में हम लोग जब भी जाते हैं ना वहां पे इतना कुछ मिलता है खाने को, बिकॉज आप वहां पे ग्रेटिट्यूड देने गए हो. ठीक है, और आप लंगर में बैठे हो तो लंगर में भी वो खाना जब परोस रहे होते हैं आपको पंगतों में बिठा के. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट. जो आपको सब बैठ के लाइन में बैठे होते हैं एंड वो लोग जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, प्लेट्स दे रहे होते हैं, रोटी दे रहे होते हैं, दाल दे रहे होते हैं, जो भी दे रहे होते हैं, at that time everybody is just chanting because they ask you to chant with them. सतनाम वाहेगुरु या कुछ ऐसा बोलते रहते हैं वो लोग. So because you are in a way paying gratitude to the God for the food you are going to eat. And when you start eating, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, it's not only के सिर्फ दाल रोटी आ गई, कभी चावल आ गए, कभी मीठे चावल आ गए, कभी कोई मिठाई आ गई, and it's like a feast because you are full of gratitude. It's just an example, but what I'm saying is that when you are full of gratitude while eating, you will never have lack of food. That is what this book is talking about, and that is what this chapter is going to be about. कि हम जब खाना खाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए और ये खाना हम तक पहुंचता कैसे है, हमको किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जब हम खाना खाते हैं. हाँ जी, let's read it. Ma'am, I think you should increase a little. I'm not able to see it clearly on the screen. I don't know if everybody. Is it okay now? Yeah, this is better. This is better. Okay, fine. Yeah. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. Okay. तो अभी मुझे बताएं, आप लोगों में से कितने लोगों ने ये देखा था कि आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो खाना खाने से पहले थाली के आसपास ऐसे जल से पानी से अर्घ दे के फिर खाते थे? Somebody unmuted say. Yes ma'am, दीपक. हाँ, हमने देखा था. हाँ, बहुत लोगों को. तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और अगर आप किसी को पंडित को या किसी को बुलाते हैं तो वो अभी भी ऐसे ही करके खाते हैं. मेरे पिताजी ऐसे ही करते हैं. हाँ, सो बहुत सारे जो पुराने ट्रेडिशनल जगहें थी जहाँ पे लोग खाना खाने से पहले हमेशा ही ग्रेटिट्यूड देने के बाद खाना खाते थे या हाथ जोड़ते थे खाने को पहले, उसके बाद खाना खाते थे. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ दिस फास्ट पेस्ड लाइफ वी आर लिविंग इनटू, जिस तरह की हमारी जिंदगी हो चुकी है, हमें तो पता ही नहीं होता हम खा क्या रहे हैं. इधर से खाना खा रहे होते हैं, उधर से कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, इधर से खाना खा रहे होते हैं या हम अपने मोबाइल पे लगे हुए होते हैं या हम टीवी देख रहे होते हैं.
या हम बातें कर रहे होते हैं, you know, people have this luncheon meetings and breakfast meetings. तो वो breakfast पे भी meetings कर रहे होते हैं, lunch पे भी meeting कर रहे होते हैं. What are they doing? They don't even realize it. कि अगर वहां पे आप बात करते करते किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट करने लग गए, that is what is going into the food. May I request others to be on mute, please? Yeah, thank you. So अभी की फास्ट पेस लाइफ में आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जो टिक के एक जगह बैठ के सिर्फ खाने पे फोकस करके खाना खाते हैं. Everybody is doing multitasking. Even while eating, टीवी देख रहे हैं तो न्यूज देख रहे हैं, कुछ ना कुछ टीवी पे देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, या किसी से बातें कर रहे हैं फोन पे और खाना खा रहे हैं, या लैपटॉप पे काम करते करते साइड में टेबल पे रखा हुआ और खाई जा रहे हैं चम्मच से मुंह में, पता ही नहीं जा क्या रहा है अंदर. So that is the life we are living right now. Yeah, and there is no gratitude because हमें gratitude देने का टाइम कहाँ है, हमें तो खाना खाने का टाइम नहीं है. I mean, you will see people सुबह सुबह ब्रेकफास्ट अपना रोल करके गाड़ी में हाथ में पकड़ा हुआ है, साथ में खाए जा रहे हैं और गाड़ी चलाए जा रहे हैं, साथ में म्यूजिक चल रहा है, साथ में ट्रैफिक आ गई तो गालियां भी दे रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा हो गया, रास्ते में गाड़ी ठुक गई तो वो सब भी हो रहा है. Is it a way to eat? We have actually forgotten कि हमें ये खाना मिला कैसे है, कितनी मेहनत करते हैं. First thing why we work is to survive. And survival के लिए सबसे जरूरी होता है खाना. And we have forgotten that. हाँ जी, पढ़ें. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak, you might have started to tremble, your mind became confused, and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. Okay. So अभी आप लोगों में से सबने कहीं ना कभी अपनी लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने खाना नहीं खाया और आपको पेट में दर्द हो गया या चक्कर आने लग जाते हैं. You start feeling weak and you're not able to think straight. मतलब जैसे मुझे भूख लगती है तो मेरे तो यहाँ बैक में या कंधे पे दर्द शुरू हो जाती है. And I start feeling थोड़ा सा जैसे ना गिडी सा फील होना शुरू हो जाता है. So everybody has some experience of it. कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि खाना टाइम से नहीं खाया या खाना ऐसी सिचुएशन थी कि खाना खा ही नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं पे इसका इम्पैक्ट हमें महसूस होता है. So we have lot to be grateful for as far as food is concerned. हाँ जी. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. Okay. अब मुझे ये बात बताएं, आपके सबके घर में फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, और जब भी वेजिटेबल वाला आता है तो वो हम उससे फ्रेश सब्जी लेते हैं ना, वो फ्रेश लगती भी हैं और होती भी हैं. वो इतनी फ्रेश रहती कैसे हैं और कहाँ से आती हैं? कभी सोचा आपने? अगर आपके घर में सुबह दूध वाला आता है, दूध अगर आपने बिग बास्केट लगा रखा है या कुछ और लगा रखा है, तो कोई आके आपके उस बास्केट में दूध डाल के चला जाता है सुबह सुबह. आपने कभी सोचा ये दूध किसने निकाला, कहाँ गया, कैसे प्रोसेस हुआ, इसको पास्चराइज कैसे किया उन्होंने, कैसे इसकी पैकेजिंग हुई होगी, कैसे वो वहां से ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, कहाँ कहाँ गया होगा, फिर कैसे उसने वहां से वो आपके वेंडर के पास आया होगा, फिर उस वेंडर ने कैसे लोगों को हायर किया होगा जो सुबह सुबह बाइक्स पे आके डिलीवर करते हैं, एंड देन दैट मिल्क पैकेट रीचेस यू. कभी सोचा ये सब? हम तो उठाते हैं बाहर से दूध और स्टार्ट करते थे यूज करना. हमने कभी भी इन सब चीजों के बारे में सोचा ही नहीं कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं एक छोटी से एक्ट में.
अगर आपने एक एप्पल खाया, जैसे आजकल बहुत अच्छे ग्रेप्स आ रहे हैं, आप ग्रेप्स खा रहे हो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने सुंदर है ना ग्रेप्स, आप उसको धो धो के खा रहे हो और बहुत टेस्टी लग रहे हैं, आपको मीठे मीठे लग रहे हैं। आप कह रहे यार ये मौसम बढ़िया है, इसमें ना फ्रूट भी अच्छा आ जाता है, किन्नू बड़े अच्छे आ रहे हैं आजकल ना जूस के लिए। पर आपने ये सोचा कि ये आप तक पहुंचे कैसे? कब उस फार्मर ने उसके बीज डाले होंगे, उसको कितनी मेहनत से उसने सींचा होगा, धूप, सॉइल, है ना, पानी, हवा, मैन्योर, इतनी सारी केयर की होगी उसने, तब जाके वो पौधा निकला होगा। फिर उसको पौधे को बड़े होने में कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि हर पेड़ का फ्रूट देने का एक टाइम होता है कि वो 3 साल बाद देगा या 4 साल बाद देगा या 1 साल बाद देगा। तो सिमिलरली उसने उसको कितनी मेहनत से उतने साल तक पाला पोसा, फिर उसमें फ्रूट आने शुरू हुए। उसके बाद उसने उन फ्रूट्स को तोड़ा। अगर उसके बाद बड़ा ऑर्चर्ड है तो उसने किसी को ठेके पे दिया। तो किसी ने आके अपनी लेबर लगाई, उन्होंने उनको तोड़ा, फिर एक जगह पे डाला, फिर उनको सॉर्ट आउट किया। अच्छे-अच्छे एंड जो कच्चे हैं या ज़्यादा पक गए हैं, सबको उन्होंने सॉर्ट आउट किया। उसके बाद उन्होंने उनको पैकेजिंग के लिए भेजा। फिर उनको डब्बों में पैक किया या जिस तरह से भी पैक हुआ। उसके बाद उसने किसी ट्रांसपोर्टर को दिया। वो ट्रांसपोर्टर मान लो किन्नौर से आ रहे हैं या कहीं और हिमाचल से आ रहे हैं, वो वहाँ से लेकर उसको दिल्ली में आया। दिल्ली में आके वो आज़ादपुर मंडी में कोल्ड स्टोरेज में रखे गए। कोल्ड स्टोरेज के बाद आड़ती ने वो यहाँ के वेंडर्स वेंडर्स को बांट बेचे सुबह-सुबह। आपको मालूम है मंडी सुबह 2 बजे शुरू हो जाती है। लोग वहाँ सुबह 2 बजे से 4 बजे के अंदर-अंदर सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स लेके अपनी-अपनी जगह चले जाते हैं। सो जितने मंडी वाले होते हैं वो सुबह 2 बजे, 2:30 बजे मार्केट पहुँच जाते हैं। और वहाँ से फिर वो फ्रेश वेजिटेबल्स और जो भी फ्रूट्स हैं उन सबको लेके अपने-अपनी जगह पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अगर कोई रेडी वाला है तो वो रेडी पे सजाता है। फिर अगर देखा हो तो धनिया और पुदीना की पैकिंग हुई होती है ना, उसकी गड्डियाँ बनी होती है। किसी ने वो गड्डियाँ बनाई, किसी ने उसको तोला कि अच्छा इसमें इतनी होनी चाहिए, उसके बाद अंदाज़े से या तोल-तोल के उन्होंने बाँधा उसको। उसके बाद वो उन सबको उसने अपने उसके ऊपर सजाया। उसके बाद वो आपके घर पे या आपकी कॉलोनी में बेचने के लिए आया। दिस इज़ हाउ इट रीच्ड यू एंड हम उसके साथ भाव-तोल कर रहे होते हैं। ये क्या लेके आया, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अपने घर में ही देखो, आपने भी तो कहीं न कहीं कुछ कभी उगाया होगा, कभी कोई छोटे टमाटर या पुदीना या धनिया, कितनी मेहनत लगती है नहीं लगती है? और उसके बाद जब अगर आपने घर पे पुदीना लगाया है या धनिया लगाया है, आप उसको तोड़ के थोड़ी देर के लिए टेबल पे या अपने किचन के स्लैब पे रख के छोड़ दो उसको, तो वो मुरझा जाता है। 3-4 घंटे में वो मुरझा जाता है। बट हमारे पास ये कैसे फ्रेश पहुँचता है हमेशा? सोचो कहाँ से आया वो और कैसे वो फ्रेश रहा? कितनी मेहनत करी सबने? कभी हमने सोचा ये सब? तो आज से सोचना शुरू करो, जब भी कुछ खरीदते हो, सोचो उन सब के बारे में जिनकी वजह से वो आप तक पहुँचा एंड स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड टू ईच वन ऑफ देम। या प्लीज कंटिन्यू। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. या सो इट इज लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, सब कुछ हार्मनी में चलता है, सबका सीक्वेंस से चल रहा है, पता ही नहीं कौन कौन इन्वॉल्व है, ऑटोमेटिकली एक के बाद वो जैसे होता है ना, व्हाट यू कॉल इट, प्रोडक्शन लाइन होती है। जैसे जैसे आप कहीं प्रोडक्शन में आपने कभी देखा हो, तो आप प्रोडक्शन लाइन में जाओगे, जैसे आई यूज्ड टू वर्क विद होंडा, तो जब एक्टिवा स्कूटर बनता था तो एक पार्ट कहाँ, फिर वो ऐसे आया, फिर वो असेंबल हुआ, फिर अगले के पास गया, फिर वहां कुछ असेंबल हुआ, फिर अगले के पास गया, तो वो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक वो सब कुछ हार्मोनाइज्ड है, एक सीक्वेंस में चल रहा है। एंड सो मेनी पीपल आर देयर इन्वॉल्व फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू द फिनिश प्रोडक्ट। सो सिमिलरली जब आप कोई भी चीज खाते हैं,
कहीं पर भी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं या आप एरोप्लेन्स में भी जा रहे हैं या आप हॉस्पिटल्स में भी हैं, कैसे हर चीज वहां पहुंच जाती है, सब चीजें कैसे हो जाती हैं ये सब कुछ। कैन यू हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि अगर आप प्लेन में जा रहे हो तो आपके पास जो फूड वहां पे सर्व होता है वो कितने बजे, अगर आपकी मान लो सुबह 3 बजे की फ्लाइट है, तो वो कैसे सब कुछ ऑर्केस्ट्रा होके कितने बजे बना, कैसे पैक हुआ, कैसे वो डिलीवर हुआ, so that you are able to eat it in the flight when you are board, when you on flight, एंड आप जब फ्लाइट में है तो इतने बजे सर्व होना है, उससे पहले पहले वो लोड हो जाना चाहिए। सब कुछ कितना सिंक्रोनाइज्ड है। सो इट्स मोर लाइक एन ऑर्केस्ट्रा। जैसे ऑर्केस्ट्रा में होता है कि एक अच्छी मेलोडी बनने के लिए, एक अच्छा म्यूजिक क्रिएट करने के लिए हर एक साज की एक जगह होती है, इसके बाद ये बजना है, इसके बाद ये बजना है, और वो ऑटोमेटिकली जब वो उसके नोट्स लिखे होते हैं तो जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है वो सिर्फ ऐसे ऐसे करता है। इससे हमें तो समझ नहीं आता, वो उंगली वो एक डंडी सी घुमा रहा है, उससे क्या हो रहा है, बट पीपल नो जो ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं कि किसके बाद किसका सीक्वेंस है, एंड एवरीथिंग इज लाइक, मतलब it's so synchronized, and then that beautiful piece of music is created. So similarly, when anything is coming to your house, whether it is a bread, whether it is biscuits, whether it is anything you eat, आजकल तो पैकेज फूड दुनिया बहुत खाती है, तो पैकेज फूड के लिए सोचो कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हुए होंगे। Yeah. So start paying gratitude to each one of them. Every time you eat something, just think of all the people involved in that, and then eat it. Hanji. Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. Okay, so we also started taking food for granted, right? But food is also a gift, and this gift is given to us by universe. हमारे जो 5 तत्व हैं जिनकी वजह से ये सृष्टि हुई है, उन 5 तत्वों की वजह से ही हमें ये फूड भी मिलता है। अगर धरती ना होती तो क्या हमें खाना मिलता? और धरती में अगर सॉइल नहीं होती और वो सॉइल में अगर खाना उगता नहीं, अगर ये सब फूड प्रोडक्ट्स उसमें ग्रो नहीं होते, तो इतनी अबंडेंस ऑफ चीजें जो हमारे पास खाने के लिए हैं क्या होती? पानी नहीं होता, उसको जैसे कहते हैं ना सींचने के लिए अगर पानी नहीं होता तो क्या वो उगता, वो पौधा जो हमने बीज बोया था नहीं उगता। अगर पानी भी होता और सूरज नहीं होता, सूरज की गर्मी से उसको वो ऊर्जा नहीं मिलती, तो क्या वो फूड प्रोडक्ट पैदा होता? नहीं होता। So it is a gift to us by the universe. The universe is number one, जिसका हमें gratitude देना है when we are eating something. And now they are talking about water. Water के बिना क्या हम sustain कर सकते हैं? खाने के बिना फिर भी हम कुछ दिन रह सकते हैं। पानी के बिना हम उससे बहुत कम टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। अगर हमको पानी की प्यास हो और हम ना पिए पानी थोड़ी देर तक, तो कितना डिहाइड्रेशन हो जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग, अब जिनको डायरिया हो जाता है या लू लग जाती है या क्या होता है, जहां पर भी डिहाइड्रेशन हो जाता है या पानी का कंजम्पशन कम होता है जिनका, देयर बॉडी स्टार्ट्स रिटेलिएटिंग, उनकी बॉडी में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज पानी के बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते, because 72% of our body is water and this planet 70% is water. तो water water everywhere. अगर आप कुछ भी बनाते हो, even if you are making a, अगर आप इस घर में बैठे हो तो आपको क्या लगता है इसमें पानी लगा है कहीं पे? सोचो, लगा है कि नहीं लगा?
जब आपने घर खरीदा, आपने तो घर खरीदा, पर आपको पता है इसको बनाने में पानी लगा है? इसकी हर जब भी प्लस्तर हुआ उसके ऊपर चिनाई हुई। चिनाई होने के बाद उसको उन्होंने पानी से पक्का करने के लिए उसको पानी डाला। नींव में पानी पड़ा सबसे पहले। उसके बाद जब आपके लेंटर्स पड़े हैं, उसमें पानी पड़ा। जब उसने वो जो क्या बताते हैं उसको मसाला बनाते हैं जो प्लस्तर करने के लिए, उसको घोलने के लिए भी पानी लगा। तो पानी के बिना ना तो आपका घर बना है, ना कोई चीज़ बनती है। अगर आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग का भी कोई प्रोडक्ट देखोगे, कहीं न कहीं वाटर यूज़ होता है। आपकी कार में, जिसको आप इतनी मतलब इतनी महँगी से महँगी कार लेते हो, उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। वो भी पानी के बिना नहीं चलती है। उसमें अगर कूलेंट है, आपका फ्यूल है, आपका पेट्रोल, डीज़ल सब कुछ है, फिर भी उसमें पानी भी चाहिए होता है। सो सिमिलरली स्टार्ट लुकिंग अराउंड यू। अगर ये ग्लास है ना, ये जिसमें मैं पानी पी रही हूँ, इसको बनाने में भी कहीं न कहीं पानी यूज़ हुआ है। अगर आप रिसर्च करोगे, आपको हर चीज़ में कहीं न कहीं पानी की खपत दिखाई देगी, कि कहीं न कहीं पानी यूज़ हुआ है। अगर आप कपड़ा पहन रहे हो, तो कपड़ा बनने में भी पानी लगा है। जहाँ पर भी कपड़ा बना गया, बुना गया है, वहाँ पानी लगा है। इसको कलर करने में भी पानी लगा है। तो हर एक चीज़ में पानी यूज़ हुआ है। सो वाटर इज़ समथिंग वी कैन नॉट लिव विदाउट। दैट टू इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। एंड इट्स टाइम दैट वी स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड टू द वाटर एज़ वेल एज़ द फूड। हाँ जी। If there is magic on this planet, it is contained in water. Lauren Isley, 1907 to 1977, anthropologist and natural science writer. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything, is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. ओके, सो अगर पानी नहीं होता, खाना नहीं होता, तो क्या हम लोग इस दुनिया में होते? हम ज़िंदा होते ही नहीं। हम होते ही नहीं, पैदा ही नहीं होते। बिकॉज़ माँ के गर्भ में भी बच्चा खाने से ही बनता है। माँ जो खाती है, वही बच्चे को लगता है। उसी से बच्चा पनपता है। उसी से बच्चे को ऊर्जा मिलती है, बच्चे को लाइफ मिलती है। अगर खाना ही नहीं है और हमारा शरीर भी जो बना है, वो खाने से ही बना है। जितना हम ज़्यादा खाते हैं, उतना ही हमारा थुल-थुल शरीर हो जाता है ना? और जितना हम नपा-तुला खाते हैं, उतना ही हम हेल्दी रहते हैं। तो खाने से ही हमारा शरीर बना है। और एक अभी आपने खुद पीछे देखा कि अगर आपने खाना नहीं खाया, तो आप ना तो फिज़िकली काम कर पाते, ना आपका दिमाग चलता है। तो बिना खाने और पानी के तो हम जीवित होते ही नहीं ना, इस दुनिया में होते ही नहीं। हम जितना आजकल ऐशो-आराम जो एन्जॉय कर रहे हैं, जितना भी हम नेचर को एन्जॉय करते हैं, म्यूज़िक को एन्जॉय करते हैं, या जितना भी हमने पैसों से चीज़ें खरीदे उसको एन्जॉय करते हैं, वो उन सबको एन्जॉय करने के लिए हमारे पास ज़िंदगी ही नहीं होती, तो ये सब चीज़ें भी नहीं होती। तो कुछ भी नहीं होता। सो इट्स अ गिफ्ट गिवन बाय द यूनिवर्स टू अस। सो इट्स टाइम दैट वी स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि जब हम खाने की बात करते हैं ना, तो जब हम बात कर रहे हैं कि इट्स लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, दैट खाना आपके पास कैसे आया, इसके अलावा भी खाने में बहुत कुछ और है। इट्स द फीलिंग्स, बिकॉज़ फीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मुझे याद है माय मदर, व्हेन आई वाज़ यंग, तो हमारे उस टाइम पे तो फ्रिज होते ही नहीं थे। तो उसी टाइम आटा मला जाता था, उसी टाइम सब्जियाँ बनती थी, उसी टाइम सब कुछ होता था। तो मुझे मालूम है कि मेरी मम्मी, जैसे मुझे सुबह का तो मालूम नहीं, सुबह तो आई वाज़ अब लाइक यूज्ड टू बी इन अ रश के तैयार होना है, स्कूल जाना है, ये सब वो सब। बट शाम को जैसे हम घर पे होते थे, तो मेरी मदर को मैं देखती थी जब शाम को वो खाना बनाती थी, तो वो जितना टाइम पे भी जो भी शाम का खाने की तैयारी कर रही होती थी, शी वाज़ ऑलवेज़ प्रेइंग। तो हमारे शाम की एक पाठ होता है रहरास साहब, तो शी यूज्ड टू डू दैट। वो पाठ करते-करते ही खाना बनाती थी। और जितने पुराने लोग होते थे ना, वो हर टाइम पे खाना खाने के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा सिमरन या कुछ मन में कुछ अच्छी अच्छी भावना लेके या अच्छी बातें मन में सोचते-सोचते खाना बनाते थे।
तो इसीलिए अगर हम कहते हैं ना माँ के खाने का स्वाद कहीं और नहीं मिलता, क्यों? बिकॉज माँ जो डाल रही होती है इस टाइम पे, वो डाल रही होती है फीलिंग्स। या अगर मान लीजिए आपने कहीं बाहर से खाना खाया, एंड वन थिंग यू नो माय मदर यूज्ड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट, मेरी मम्मी सबके घर का खाना नहीं खाती थी, पानी भी नहीं पीती थी सबके घर से। एंड आई यूज्ड टू से मम्मा हाउ कैन यू बी, यू नो, आपकी निप जाती है, हमारी नहीं निप सकती, हम तो बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स के घर जाते हैं, ये सब करते हैं, हम नहीं कर सकते ऐसे कि हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना एंड ऑल। बट शी यूज्ड टू वेरी लेसी, नहीं मैं नहीं खाती हूँ। एंड पीपल यूज्ड टू बिलीव इट आल्सो कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं खाते तो मैं हम जोर नहीं डालेंगे। बट आई यूज्ड टू आस्क हर, आई सेड मम्मा ऐसा क्यों है कि आप क्यों नहीं खाते हो? तो शी सेज कि पता नहीं उनके घर का कमाई कैसी है। अगर तो उनकी जैसे कहते हैं ना ऑनेस्टी की कमाई है, तो हमारे में कहते हैं दसों नोहों की कमाई, कि मैं ये 10 नखुन जो हैं, ये हाथों से जिन्होंने कमाया है, जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है ना, उनके घर का खाना खाने से आपका मन शांत रहता है, आपको ऊर्जा मिलती है। बट अगर कोई है जिसने लोगों के साथ बेईमानी करके खाना पैसा कमाया है, या जिसने धोखा देके पैसा कमाया है, या मतलब गलत तरीकों से पैसा कमाया है, उसका घर का अन्न खाने से आपका भी मन कहीं न कहीं विचलित होगा। क्योंकि जैसा खाइए अन्न, तैसा होए मन। तो शी यूज्ड टू से कि इसलिए मैं नहीं खाती हूँ किसी और के घर का, मुझे नहीं मालूम उनकी उनकी कमाई कैसी है। मैं अपने मन को विचलित क्यों करूँ उनके घर का खाना खा के? अगर मैं ग्रैटिट्यूड में रहना चाहती हूँ, या मैं उसके ऊपर वाले के साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ, तो वो मेरे मेरी उस चीज़ को आके डिस्टर्ब करेगा। सो आई हैव टू बी कॉशियस कि मैं किसके घर से खा रही हूँ, किसके घर का पानी पी रही हूँ। सो दीज़ थिंग्स हैव साइंटिफिक रीजंस। तो अगर कोई खाना बना रहा है और वो गुस्से से खाना बना रहा है, तो उसका जो एंगर है, वो फीलिंग्स है, उस खाने में जाएंगी। एंड एंड यू वोंट बी सरप्राइज कि आपकी मेड को अगर वो खाना बना रही है और आपकी बीवी ने डांट दिया है, आपकी मदर ने डांट दिया, और उसने गुस्से में खाना बनाया है और आपने वो खाना खाया दिन में, आपको इनवेरिएबली किसी ना किसी बात पे जबरदस्ती गुस्सा आएगा ही आएगा। आप ना चाहें फिर भी आपको गुस्सा आएगा, आप किसी ना किसी पे वो गुस्सा निकालोगे। एंड यू विल बी सरप्राइज कि ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसे गुस्सा क्यों किया, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इफ यू रियलाइज इट, many times we realize it, many times we don't even pay attention to it, but it has impact. तो जैसा खाना बन रहा है, जो बना रहा है, उसकी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए जब आई मीन आई रिमेम्बर, हम किस मतलब एक महापुरुष थे, उनसे हम जैसे बात करते थे, तो ही यूज्ड टू से कि वैसे तुम जगह जगह रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हो, उसके बाद बोलते हो कि जब मैं पाठ करने बैठता हूँ या पूजा करने बैठता हूँ तो मेरा मन नहीं टिकता। कैसे टिकेगा? क्योंकि आपको नहीं पता, वो जब मास में खाना बन रहा है, जब मास प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें जो खाना बना रहा है, उसके पता चला उसके सुपरवाइजर ने उसको डांट दिया और वो खुंदक में खाना बना रहा है और गालियां देते हुए अपने कुलीग के साथ उसकी बुराइयां करते हुए खाना बना रहा है। ऑल दैट इज ट्रांसफर्ड इन दैट फूड एंड इट इज साइंटिफिकली प्रोवन। I don't know how many of you have seen that video by a Japanese researcher जिसने पानी के ऊपर रिसर्च किया था और फूड के ऊपर रिसर्च किया था, स्पेशली पानी के ऊपर किया था, कि जब हम पानी को बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाते हैं या प्यार भरी बातें करते हैं, तो उसके क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म होते हैं जब उसको आप माइक्रोस्कोप में देखते हो। और उसको हम जो बहुत सारी गालियां देते हैं या बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं, तो उसके क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। So all these things react to our emotions, our feelings. And I also shared in the last this thing that one of our previous sessions, somebody had done this exercise. उन्होंने अब चावल उबालने के बाद 2 कंटेनर्स में उनको डाल के, और एक में थोड़ा पानी डाला उसके ऊपर और दूसरे में भी डाला पानी, और एक में उन्होंने खूब सारी गालियां डाली और एक में रोज उसमें प्यार डालते थे। जो भी आता था उसको बोल के जाता था आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एंड दूसरे वाले को बोल के जाते थे आई एम सॉरी, पानी नहीं डाला था, पानी में बॉईल किया हुए थे वो चावल, और बिकॉज उसमें वाटर कंटेंट ऑलरेडी था, तो एक को उसने एक में रखा और दूसरे को दूसरे में रखा, और दोनों सेम कंटेनर में से निकाले गए थे, पर उसको बार दूसरा 2 अलग कंटेनर्स में डाल दिया।
और एक के ऊपर लिख दिया हेट, एक के ऊपर लिख दिया लव, और उनको एक जगह पे रख दिया और सबको बोल दिया, आसपास में जितने लोग थे, जैसे मान लो किसी हाई राइज में जैसे नीचे रिसेप्शन होता है, उन्होंने वहां पे किया था, तो उन्होंने वहीं पे वो रखवा दिए और बोला कि जो भी यहाँ से निकलेगा जिसपे हेट लिखा है उसको खूब सारी गालियां देनी है, और जिसपे लव लिखा है उसपे बहुत सारी ग्रेटिट्यूड या लव, आई लव यू और समथिंग ऐसे करके बोलना है। एंड within 7 days when they opened it, जिसको हेट बोला था, जिसपे हेट लिखा था, उसमें से इतनी फाउल स्मेल आ रही थी, इतना खराब हो चुके थे वो चावल, but whereas the other one was as good as it was earlier. So this experiment was done, and if you want, you can do it on, you can also do it at home and let everybody get involved in that and see how it impacts. करके देखिएगा आप लोग भी। So जो भी फीलिंग से खाना बन रहा है, इसीलिए कहते हैं कि घर पे जब भी खाना बने ना, तो वहां पर कुछ अच्छी बातें होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो कुछ सूदिंग म्यूजिक लगा दो, भगवान का नाम लगवा दो। आजकल तो इतना कुछ चलता रहता है, कहीं पे भी प्लग इन कर दो और वो बजता रहता है। So and see to it that the environment is peaceful and everybody is happy when they are cooking, because उसका असर हर उस खाने वाले पे होने वाला है जो खाएगा। So this is something I really wanted to say, कि this is very important. So going forward, जितनी भी ladies इस session में हैं, please ensure that you start incorporating this if you're not already doing it. Yeah, please. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. This is the most important thing. And we all owe this to the world, to the universe. जब भी आप ग्रैटिट्यूड दोगे फूड के लिए, जितने ज्यादा लोग फूड के लिए ग्रैटिट्यूड देते चले जाएंगे, तो उसका मास रिएक्शन होता है। एक होता है आप अकेले ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, एक होता है मास ग्रैटिट्यूड। जब एवरीबडी व्हेन दे आर ईटिंग एंड पेइंग ग्रैटिट्यूड, इट बिकम्स अ मास ग्रैटिट्यूड। और मास ग्रैटिट्यूड से क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप फूड के लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हो तो फूड अबंडेंस में आएगा, और अगर मास ग्रैटिट्यूड हो रहा है अबाउट फूड, तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी खाने की कमी नहीं होगी, चाहे वो नामीबिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका कोई और देश हो जहाँ पे भुखमरी से लोग मर रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन से लोग मर रहे हैं, कोई भी नहीं मरेगा, क्योंकि देयर इज अबंडेंस ऑफ फूड। It is some capitalistic people who are trying to control everything. चाहे वो पानी है, उसको भी उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, खाने को भी, अब एयर को भी they just want to capitalize on air also, air purifiers और ये सब चीजें abundance में दी है यूनिवर्स ने हमें, कहीं भी scarcity नहीं है। It's man created scarcity, and when we start paying gratitude for it, everybody will have abundance. कहीं पे भी कोई भूखा नहीं मरेगा। And I think we owe this to the world. We owe this to the mankind. So at least for others, if you're not for your own self, start doing it. और अगर आप किसी और के लिए कुछ करना चाहते हैं और आपको नहीं समझ आता मैं कहाँ जाऊं लोगों को सपोर्ट करने या कंट्रीब्यूट करने के लिए, this is one simple way that you can contribute in your life as well as in others' life. Yeah. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. Okay. In ancient times, one second. So it actually weaves a golden thread. अब ये golden thread क्या है? Golden thread is like it will start, जो चीजें आपको चाहिए वो उसके साथ जोड़ते जोड़ते उस ग्रेटिट्यूड को आपके पास वापस ले आएगा। तो जितना ग्रेटिट्यूड आप दोगे, चाहे वो फूड के लिए, चाहे वो पानी के लिए,
the more you are feeling grateful about things, it will start adding to that golden thread. जो वो पूरी thread आपके पूरे सपनों को उसके साथ weave करते करते आपके पास वापस लेके आएंगे. हाँ जी. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well being on your body. One of the ways to experience the magic of gratitude. One second, Yeah. pause. Okay. So, if you, I don't know how many of you have paid attention to what was said here. So it says that whenever you eating something, जैसे हम लोग बाहर खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में या किसी के घर पे खाना खा रहे हैं, होता है कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम लोग तो सारा टाइम बाहर ही रहते हैं, तो वी हैव टू ईट आउट. तो क्या उसका क्या सोल्यूशन है कि हमें ग्रेटिट्यूड कैसे देना है, वो फीलिंग्स कैसे चेंज करनी है? हमें नहीं पता किसने खाना बनाया, किस फीलिंग के साथ बनाया, हम उसको प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं? सो वो प्यूरिफाई करने का तरीका ये है कि जैसे मैंने चावलों के बारे में बताया कि चावल रखे थे वहां पे, एंड व्हेन यू स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड, यू पेइंग गुड फीलिंग्स, उसको अच्छी बातें बोल रहे हो, तो उसका जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है ना. जैसे वाटर का मैंने बताया. सो व्हाटएवर यू आर ईटिंग, if you're paying gratitude to it, it's like an observer's effect, right? तो मान लो कहीं पे कैमरा लगा हुआ है और आपको पता है कि कैमरा लगा, तो you will be very cautious of whatever you are doing right now, है ना? तो उसका एक इफेक्ट होता है ना ऑब्जर्वर का, कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है आपको. और अगर कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, मान लो आपके ऑफिस में कैमरा नहीं है, आप बॉस हो और आपके स्टाफ, आप नहीं हो ऑफिस में, तो आप देखोगे स्टाफ बड़ा आराम से बैठा हुआ है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई चाय पी रहा है. क्यों? There is no one to observe them. या सो ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है. एंड जब हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, अगर हम हैव दिस ऑब्जर्वर इफेक्ट एंड व्हाटएवर फीलिंग्स वी आर पुटिंग इनटू इट, इफ वी आर फीलिंग ग्रेटफुल अबाउट इट, एंड व्हाटएवर फीलिंग्स वी आर पुटिंग इनटू इट विल चेंज द फॉर्मेशन ऑफ दैट फूड. उसकी जो अंदर जो भी कुछ गया हुआ है फीलिंग्स में, वो फीलिंग्स को वो प्यूरिफाई कर देता है. इसीलिए जब भी खाना खाने लगो, अगर बाहर भी खा रहे हो, तो पे ग्रेटिट्यूड टू इट. उसको देखते हुए, उसकी तरफ देखते हुए अंदर ही अंदर उसको ग्रेटिट्यूड दे दो, अगर हाथ नहीं जोड़ पा रहे हो. और you can sprinkle magic dust, as it's going to mention in the next paragraph. Yeah. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drinks in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Okay, तो ये हम लोग ना मोस्टली हर सेशन में करते हैं. आप लोगों के जिन के पास भी पानी है इस टाइम पे, you can just take one sip of water, just hold it in your mouth. Don't gulp it down and see. For example, like I'm also having it. Okay, now you can gulp it down. So did anyone try it? You can unmute if you have tried it right now. Okay, so if you haven't tried it, don't worry. After the session,
whenever you are about to drink a water, just remember this. Just you have to take one sip and just hold it in your mouth. And then you will experience something which you have never experienced while drinking water. Or even while eating something, जब आप हाथ से अपने मुंह में एक कॉर्ड डालोगे, तो उसको मुंह में चबाने के बाद, अगर आप मान लो ग्रेप भी खा रहे हो, आपने एक अंगूर रखा अपने मुंह में, तो उसको अपने मुंह में चबाते हुए फील करो उसका फ्लेवर. आपको वो जैसे आज महसूस होगा ना, वो पहले कभी नहीं होगा, because you've never focused on it, what you're eating. And this is one way of paying gratitude. जब आप उसको महसूस करोगे, तो आपको अंदर से ही आएगा है कितना अच्छी चीज थी ना, कितना अच्छा टेस्ट था, तो automatically you will start paying gratitude. So this is one way of paying gratitude. हाँ जी. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient. And I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you're shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. Okay, so what the writer is saying is that if you want, you can actually, whenever you're eating something, you can feel as if you're sprinkling some magic dust over it. तो अगर आप उंगली से करना आपको अजीब लग रहा है, तो यू कैन फील एज इफ जैसे सॉल्ट एंड पेपर के हमारे शेकर्स होते हैं ना टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल पे या रेस्टोरेंट्स में भी आपने देखे होंगे. So you can imagine that you have a shaker in your hand which contains magic dust. So every time you're eating something, just as if you're sprinkling it on it, just sprinkle it. Or a friend of mine had actually kept a small sprinkler kind of a thing, like you have it for the salt and pepper. And wherever she used to go and eat something, she used to sprinkle something. So as just do it like this. People used to say, "What are you sprinkling?" Oh no, actually I like my food to be little more spicy. So I थोड़ी सी मिर्ची add कर. So she used to just carry that with her. So you can do that. Whatever works for you. So the only purpose is to be grateful while eating and drinking. Anji. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drink, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend on it. Yeah. Depend upon it. Yeah. So the whole thing is कि आपको अगर भूल जाते हो, because आदत नहीं है अभी हमें, तो हो सकता है हम भूल जाएं. तो अगर आप भूल जाते हो, अगर खाना खाते टाइम या कुछ पीते टाइम आप ग्रेटिट्यूड देना भूल गए, तो नो प्रॉब्लम्स. यू कैन आफ्टर दैट यू कैन जस्ट इमेजिन कि उस टाइम पे आपने क्या खाना शुरू किया था, खाने से पहले आप दोबारा से उसको विजुअलाइज करके भी आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो. Yeah. And going forward, you can do this every time. Why only one day? Because I've been doing it for now for almost 5-6 months. I do it every time I eat something. I drink water. So because you can't miss. अगर आपने आज ये practice miss कर दी, तो आपका जो momentum है ना वो derail हो जाएगा. जो आपने gratitude का momentum बढ़ा रहे हो to achieve your dreams, उसमें delay आनी शुरू हो जाएगी. तो we don't want to do that. तो आपको ये आज अगर आप भूल भी जाते हो, तो आपको विजुअलाइज करके करना है, और कल अगर आप आज भूल जाते हो, तो कल आप उसको दोबारा से कर सकते हैं. हाँ जी. Being grateful for the simple things in life,
like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. या बिकॉज जब देखो आप खाना पीना तो सारा दिन ही चलता है ना हमारा, कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ पी रहे हैं, तो आप जितना उसके बारे में ग्रेटिट्यूड देते जाओगे उतना ही, और जितना फील करके, बिकॉज देखो आपने बुक में इस चैप्टर में रियलाइज किया कि हम खाने और पीने के बिना तो जिंदा रह ही नहीं सकते। तो आई थिंक इट इज हमारी ड्यूटी बनती है यार, इतने सालों से खा रहे हैं, कम से कम अब तो ग्रेटिट्यूड देना शुरू करें सबके लिए, और जितना ग्रेटिट्यूड दोगे उतना ही मैजिक आपकी लाइफ में मैग्नीफाई होगा। हाँ जी, लेट्स लीड द प्रैक्टिस। Magic practice number 8, the magic ingredient. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you're about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Okay, so point number 1 everybody knows by now, and today what you're supposed to do is you're supposed to say gratitude every time you're eating something or drinking something. तो आप चाहो तो सिर्फ फूड के लिए थैंक यू बोल सकते हो, यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हो, और उन सब लोगों के लिए थैंक यू बोल सकते हो जिनकी वजह से वो खाना आपकी टेबल तक पहुंचा। सो इट इज अप टू यू टू व्हाट लेवल और व्हाट डिग्री यू वांट टू पे ग्रेटिट्यूड, एंड if you want to, you can use that magic sprinkler kind of a thing also to magic dust your food if that works for you. Anji. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah, and magic practice, magic rock practice, of course, you know that you have to, before going to sleep, you have to hold it in your hand and go through your day and look at what are the good things that happened during the day. And for the best things, say thank you and just replace it back from where you picked it up and just go to sleep. So this is the practice for today. And thank you so much, Suma, for reading it so beautifully for all of us. And Thank you. so आज का चैप्टर जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज खाना और water and food is a gift given by the universe to us. तो आज से अभी तक हमने अगर नहीं दिया है ग्रेटिट्यूड, और अगर हमने दिया भी एज अ रिचुअल, तो इसको एज अ रिचुअल ना करके फील करके, बिकॉज फीलिंग इज द फ्यूल। जितना फील करके ग्रेटिट्यूड दोगे उतना ही मैग्नेट की तरह ये काम करेगा और आपके सपनों को आपके पास लेके आएगा। Yeah, thank you so much. So we have Puran with us today. So I would request Puran to unmute himself and just say hello to everybody. Hi, good morning, and hello to everybody. Good morning. Good morning. Good morning, Good morning. Sushil. Good morning, Suma. Thank you. Good morning, Anjali. Good morning, Anji, Premgeet. Good morning, Bijal, Darshan, Deepak, Mananya, Meenu, Rahul, Ranjit, Suma, and everyone. Good morning. And Good morning. Good morning. Good morning. Good Morning, Puran. and amazing Good morning, intelligent Puran. Puran, this is Good like good morning. morning, sir. यस सर, तो बिजी हो गए सर, आते नहीं है, इसीलिए हम स्टूडेंट को बोलना पड़ता है गुड मॉर्निंग सर। नहीं, हम सब एक दूसरे के लिए यहाँ पर सर और मैडम है, आई बिलीव, और हम सब एक दूसरे को एम्पावर करते रहे कि हम ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहे, because no one could be a master while paying gratitude to Almighty. We all know that. Yeah, we So can never thank do you so enough. much. Thank you so much. And I'm actually away from my from Delhi. I'm in some other place. थोड़ा इंटरनेट इशू है इधर होटल में, so I'm on this audio. And so Jagjit and everyone, I really want to congratulate you the way you are playing, especially when it comes to scoreboard of gratitude.
And so congratulations to all of you, and congratulations to, I can see couple of people जो कि बहुत ही quickly respond करते हैं, जिसमें दर्शन जी हैं, I think मीनू है, रंजन है, रंजीत है, Suma also respond, and I believe Rahul and तो Bijal, so congratulations guys. आप लोगों को कैसा लग रहा है इस बारी जो एक नया चीज ऐड ऑन हुआ है कि आप अपना असाइनमेंट के लिए आपके पास में एक रिमाइंडर रहे और देन आप उसको सबमिट करें सो दैट यू नो दैट ये प्रोग्रेस आपने किया है. Anyone would like to say anything can unmute and say one by one, and any suggestions if you have, and then yes, I will conclude it by saying one more important thing. पूरन, गुड मॉर्निंग. अंजी कपूर प्रेमगीत, मतलब आपने हमारे को इतने प्यार से इस काम पे लगा दिया कि हमारे को डर लगा रहता है सुबह से शाम तक. मैजिक के रिजल्ट को तो बाद में, पहले आपकी याद ज्यादा आती है कि अगर होमवर्क नहीं करा तो दिक्कत आ जाएगी. दिक्कत इन सेंस नथिंग, नो यू आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग फास्ट, बट रियलाइज होता है कि नाउ यू हैव टू सी टू इट. नाउ प्रैक्टिकली यू हैव टू लिव विद दिस. This is like within this since November till now 6 times I have read it, और 4 times तो मैंने practically अपना जर्नल बन के काम करना चालू करा. इस टाइम तो इतना सीरियसनेस हो गया कि मेरी PhD खत्म हो जाएगी अगर मैंने नहीं करा मैजिक में. So very really, and my group people who are जो शाम को हम कर रहे हैं, तो they all are really मतलब excited. हमारा 40 मिनट्स का ब्रेक होता है, उसके अंदर फिर दोबारा से रिज्यूम करना पड़ता है. तो दे ऑल से एकदम, द लेडीज, ओल्ड लेडीज आर देयर विद द एज ऑफ 62 60 प्लस. दे ऑल इमीडिएटली ट्राई टू लॉग इन. दे बिकम एक्सपर्ट इन लॉगिंग इनटू द Zoom अगर जैसे सेशन खत्म हो जाता है. सो दैट मैजिक आई वांटेड टू शेयर विद यू. सेकेंडली, इसके अंदर अमेंडमेंट तो आप ही बता पाओगे, बिकॉज यू आर द मैथमेटिकल पर्सन who knows how to catch the people if they are not doing the homework. Thank you very much. Great. Thank you Anji, thank you so much. And so yes, एक जो चीज हम लोग आपके साथ में शेयर करना चाह रहे थे, and my apology for that कि आज वो नहीं हो पाया. I have shared with Jagjit there's some unworkability, and but in next week we will show you also where you all are in terms of your weekly progress, right? So that आप लोगों को पता रहे कि कितने assignments हुए, किस के हुए और कितने assignments नहीं हुए. However, and then you will also get a tracker जहाँ पे जाके आप खुद भी उस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसा रहा है वीक का, आपका डे वाइज प्रोग्रेस कैसा रहा है. And you know, one of the important thing जो मैं emphasize करना चाहूंगा कि जरूर आप इसको सबमिट करें before 10 PM, क्योंकि you know इसके अंदर में सारे असाइनमेंट मेंशन हैं. एंड जब आप गो थ्रू होते हैं तो दिन भर की भागदौड़ में कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो यू नो इट गिव्स यू कि आपको क्या चीज करना है. इवन आप दिन में भी असाइनमेंट या गूगल फॉर्म को क्लिक करके जा सकते हैं. इट विल कीप यू अलाइव, राइट, कि क्या असाइनमेंट्स थे, क्या चीजें थी. सो दिस इज द वे इट कैन हेल्प यू. Okay, great. So thank you so much again. I think Jagjit and me both are just a call away or a text away to support you and assist you in this journey, right? So keep rocking, keep expressing yourself. This is your own space. This is your own group, and be free to connect to both of us and be in gratitude. And let's make this magical life. Let's make this world magical. Thank you, Pooran. Thank you so much. Let's do Thank you so much. Gratitude prayer. Just fold your hands. Thank you to all of you. Thank you. Let's do the gratitude prayer, please. Let's fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. Thank you everybody, and as Pooran said, have a magical day, and don't forget to bless your food and your water, whatever you drink, even your tea. अभी अगर किसी ने चाय पीनी है अभी तो
तो क्योंकि मैं अभी चाय पीने वाली हूँ। मेरे जैसे आपने बोला, मैंने हाथ में कप उठाया था, and it again remind me, again blessing it. So मेरे चाय का प्याला भेजता हूँ ग्रुप पे अभी। Okay, enjoy. And you can never do enough. क्योंकि सर ने तो मैनेजर काम पे लगा दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सीरियसली, जो गूगल फॉर्म में याद ही नहीं रहता है मेरे को, तो फटफट याद करना पड़ता है। आज सर ने काम दिया है, लगा दो आज मैनेजर को काम पे। चलो, गुड। Okay, thank you everybody. We will see you tomorrow at 6:20. Have a wonderful day. Thank you very much. Have a Bye-bye. great day. Thank you. Saturday weekend to all. Thank you.